In this reaction, you have to tell me that which is the oxidizing agent, which is a reducing agent, which compound is oxidized, which compound is reduced. You have to tell me this thing. Okay? So we will discuss here. बताओ सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ? So we will see that oxidation is of carbon, reduction is of lead oxide. रिड्यूस कौन हो रहा है? लेड ऑक्साइड हो रहा है इनटू लेड. लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, तो lead oxide is reduced by the help of this carbon. So reducing agent is carbon, and carbon is oxidized into CO is because of lead oxide. So oxidizing agent is lead oxide. Now one more thing, oxidation product and reduction product. Oxidation का product and reduction का product. What will be the product of oxidation and reduction? So देखो, oxidation का product है carbon monoxide and reduction का product है lead. Okay, so these are the question which will be asked on the redox reaction. Which can be asked on the redox reaction. If any question now, then you can ask. Now you can ask if any question is there. हाँ बोलो. Anything you want to ask, then ask. No question? Okay. क्या सबने कर लिया? ये रब कर दूं? Can I? Everyone has done? Can I rub? Now see. अब अगर बोला ना चैट बॉक्स वो खोलो तो वो मैं वहीं आकर मारूंगा तुझे, ये ध्यान रखना. डोंट स्पीक आउट एनीथिंग. नाउ स्टॉप चैटिंग विद ईच अदर एंड द क्लास शुड गोइंग ऑन. कीप अ कंसंट्रेशन ऑन अ क्लास. लुक आउट हियर. See the condition, we are taking the class for only for 40 minutes and still you are not concentrating. 40 minutes में topic को कराना, it's very difficult. It's very difficult to cover the complete topic in 40 minutes. Still we are doing. Still we are completing it. Now corrosion. As we have told, कल हमने किया था decomposition और degradation. और डिकम्पोजिशन और डिग्रेडेशन ऑफ metals in the presence of air and moisture. Okay, in the presence of air and moisture.
Any example? Like iron. If we will put iron in the presence of air and moisture for many years, a long process, corrosion in iron is called as rusting. Corrosion of iron is called as rusting, and rusting कहते हैं corrosion of iron को. और इसके अंदर in this a brown colored layer is formed. Brown color layer is formed of rust, and the formula for rust we have done yesterday, isn't it? तो उसे बोलते हैं rusting. This is called as rusting of iron. अब ये rusting of iron हुआ है due to presence of air moisture. रीजन क्या है रस्टिंग का? एयर एंड मॉइस्चर. आयरन के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी चीजें आपने देखी होंगी, उनमें सब में रस्ट लग जाता है बिकॉज ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. नाउ कीप इन माइंड वन थिंग कि ये जो एयर और मॉइस्चर की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर और उसकी वजह से रस्ट आ जाता है. तो उसकी वजह से यहाँ पर उसको बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए वी हैव टू यूज द डिफरेंट मेथड्स. अब कौन कौन से मेथड है टू कंट्रोलिंग रस्ट? कैसे कैसे रस्ट को कंट्रोल कर सकते हो आप? पैंटिंग, ऑयलिंग, greasing. Okay, painting, oiling, greasing, these are the methods by which iron can be prevented from the rust. So these are the methods of protecting the metal from the rust. मगर कुछ special method भी है which we have done yesterday. One is galvanization. Galvanization में क्या करते थे? And tinning. इन दोनों प्रोसेस में किसकी कोटिंग करते थे? इसमें करते थे जिंक की कोटिंग और इसमें करते थे टिन की कोटिंग, SN, isn't it? On other metal. So जिंक की कोटिंग कर देंगे, टिन की कोटिंग कर देंगे. This is also a method to prevent the iron articles and other metal articles from the corrosion. Okay, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. Then we'll move to next part. No? रस्ट का फॉर्मूला देखो. रस्ट एक्चुअली में क्या है? रिएक्शन है रस्ट की, और रस्ट की हाँ Fe plus H2O gives Fe3O4. भाई ये वाली जो फॉर्मूला है ना, ये बुक में गिवन नहीं है. तो रस्ट का एक्चुअल फॉर्मूला जो है ना, वो ये वाला होता है. दिस इज कॉल्ड एज रस्ट. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अ रस्ट. आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड ही है ब्राउन कलर का. दिस आयरन ऑक्साइड इज ब्राउन कलर्ड. एंड ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो हाँ, ऑक्सीजन आती है तो O2 होना चाहिए इसमें बेटा. अरे वो तो बैलेंस हो जाएगा. बैलेंसिंग की यहाँ पर मैटर नहीं है बेटा. यहाँ तो अच्छा एक बात बताओ आप, आयरन जो है, आयरन का आर्टिकल जिसको आपने छत पे रख रखा है, क्या वो आयरन एक आयरन एटम का बना हुआ है क्या? नहीं, वो तो बहुत बड़ा आयरन आर्टिकल है. मान लो एक पाइप रखा हुआ है, उस पाइप पर यू आर गेटिंग अ रस्ट. तो वो पाइप तो बहुत हैवी है, उसमें तो न जाने कितने लैक्स ऑफ आयरन एटम्स हैं. तो हम तो यहाँ सिर्फ एक मोल के लिए लिखते हैं. वाटर मोलिक्यूल भी सिर्फ एक नहीं है, thousands and lakhs of water molecules are there. तो chemical reaction is written for 1 mole, but it's actually many numbers. So ये balance तो automatically हो जाएगा, उसकी वो मैटर नहीं है. Balancing is not a matter. ठीक है ना? बैलेंस तो ये हो गया. 4
और ये 3, ये बैलेंस हो गया। ओके, हाँ, बैलेंसिंग इज नॉट अ मेटल। रस्ट इज फॉर्म्ड। ओके, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन फॉर अ रस्टिंग ऑफ आयरन। और बाकी मैंने जो नोट्स भेजे थे सीबीएसई गाइड के, उसके अंदर इन दैट ऑलरेडी गिवन। ओके, एनीथिंग एल्स you want to ask in this? Otherwise we will start with the last topic, that is called as rancidity. Okay, it's a very easy topic, no problem in that. And this corrosion will again come in metals and non-metals, repeated. Okay, it will be repeated there. देखो, rancidity. Now rancidity में देखो, what do you mean by rancidity? Decomposition of oily food products. What do you mean by decomposition of oily food products? अच्छा, आपने देखा है पिकल्स और आपने देखा पिकल्स वगैरह जो ऑयली चीजें होती है, या फिर लेज जो चिप्स वगैरह होते हैं, वेपर्स के पैकेट, या कोई भी पैक्ड ऑयली प्रोडक्ट जो होते हैं, हाँ, उनको एयर टाइट क्यों रखा जाता है? ये पैक्ड जो ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एयर टाइट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एयर टाइट? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट एयर टाइट? क्यों किया जाता है इनको एयर टाइट? हाँ, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयल होता है, ये ऑक्सीडेशन शो कर देता है। क्या शो कर देता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद द ऑयली का सब्सटेंसेस। तो ऑयली सब्सटेंसेस के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो अगर वो ऑक्सीडेशन हो गया तो वो जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग देन, दैट्स व्हाई द पैकेट्स आर एयर टाइट। अब इसमें भी एक गैस और है जो लेज वेपर्स के अंदर यूज की जाती है, और वो है नाइट्रोजन गैस। व्हाई वी आर यूजिंग नाइट्रोजन गैस फॉर पैकिंग द पैकेट्स? हाँ, वही तो, क्यों यूज किया जाता है ना उसको? ना ना ना, एयर टाइट के लिए और फुलाने के लिए तो इसका सेकेंडरी यूज है। जो मेन यूज है उसका वो क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर मेन पर्पस ऑफ दिस नाइट्रोजन? मेन पर्पस इज इट्स हाँ, या इट्स एंटीऑक्सीडेंट। और व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग। आपने कभी सुना कि एटमॉस्फेयर में, आपको पता है एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट नाइट्रोजन है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज देयर? हाँ, 78% हाँ,